آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے ایک گلابی دوپٹہ پہنا ہوا ہے, اویس نے پنک ریبن لگائی ہوئی ہے, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. ایک وقت تھا جب پاکستان میں ایسا ہسپتال بنانے کا خیال جہاں کینسر کے علاج کی سہولیات لوگوں کو مفت فراہم کی جائیں, لوگوں کا خیال رکھا جائے اور ان کو اس تکلیف میں مزید اضافہ نہ دیا جائے کہ جو ایک کینسر کا مریض جس سے گزر رہا ہوتا ہے. وہ صرف خیال تھا کہ اس قسم کا جدید ترین سہولیات سے آویزاں جو ہسپتال ہے وہ بنایا جائے. لیکن پھر ایسا موقع آیا کہ جب پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بن گیا جو کہ تقریباً 75% افراد کو مفت علاج فراہم کرتا ہے, اور پچھلے 25 سال سے فنکشنل ہے. پھر یہ بنا لاہور میں, لاہور کے بعد یہ بنا پشاور میں, تاکہ وہاں کی بھی جو لوگ ہیں, وہاں کی بھی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھی کیٹر کیا جائے. اب ان کا تیسرا سب سے بڑا پاکستان کا کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے کراچی میں. بالکل, اور ہم نے آج بات کرنی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے کردار پر اور بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم یوسف صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شوکت خانم میموریل ہسپتال کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم اپنے جو سیگمنٹ کو ظاہر ہے 2 ڈومینز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے تو شوکت خانم کی جو سٹوری ہے اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, اور کینسر کے لیے کیا کیا وہاں پر علاج ہو رہے ہیں وہ ذرا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی شکریہ. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور میں دسمبر 1994 میں کھلا. اس کی انسپریشن خان صاحب کی والدہ کی جو سٹوری تھی, جن کا نام شوکت خانم تھا, ان کا کینسر ٹریٹمنٹ جو خان صاحب نے ان کی تکلیف دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم جو باقی مریض تھے ان کی تکلیفیں دیکھیں, اس سے ان کو انسپریشن ملی کہ وہ ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں جو ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے کینسر کے لیے, اور یہ دیکھے بغیر کہ پیشنٹ خود پے کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہی ماڈل ہم سارے قوم نے بھی اس میں بڑا ساتھ دیا. ہم بھی اسکول میں تھے اور وہ سارے وہ نیشن کی جو جنراسٹی ہے اس کی تو کوئی, تو اس وقت سے لے کے اب تک آپ تو اسکول میں بھی نہیں ہوں گی نا. جب نہیں, ہی کیم ٹو آور اسکول, ہی کیم ٹو آور اسکول. میری ایک فوٹو ہے جس میں میں پیچھے کھڑی ہوں اور میں پیسے ڈال رہی ہوں اس کے باکس. یہ سب کا جذبہ تو ملینز آف لوگوں نے. تو اس وقت سے لے کے اب تک شوکت خانم ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے, کتنے لوگوں کا علاج ہو چکا ہے, اور کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ لاہور کے ہاسپٹل کو اب 27 سال ہونے لگے ہیں فنکشن کرتے ہوئے. 30% ہمارے مریض KPK اور افغانستان سے آتے تھے, اس لیے دسمبر 2015 میں ہم نے دوسرا ہاسپٹل پشاور میں کھولا, اور اب تیسرا کراچی میں بن رہا ہے. ہمارا ماڈل جو ہے وہ ٹرشری کیئر کا ہے, یعنی کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام تشخیص کے لیے جو فیسلٹیز اور اسپیشلسٹس ہیں, پھر جو علاج کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو کہ کیموتھراپی یا دوائیوں سے ہوتا ہے, بجلی کی شعاؤں سے یا ریڈیشن سے, اور سرجری سے, اور پھر اینڈ آف لائف کیئر, جن لوگوں کا کینسر کا علاج اور نہیں ہو سکتا یا جن کی بیماری بڑھ جاتی ہے, ان کے علامات کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, پیلیٹیو کیئر اس کو کہتے ہیں. تو لاہور میں بھی اور پشاور میں یہ ساری فیسلٹیز ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں دونوں ہاسپٹلس میں, اور کراچی میں بھی یہی ماڈل فالو ہوگا. صحیح. تو کراچی والا کب تک بن جائے گا؟ کراچی کا ہاسپٹل جی دسمبر 2023 میں مکمل ہوگا اور کھلے گا مریضوں کے لیے. اٹس دا بگیسٹ. لاہور سے دگنا ہے سائز میں. لاہور 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ بنا ہوا ہے, کراچی کا 10 لاکھ اسکوائر فٹ پہ بن رہا ہے, کیونکہ کراچی خود اتنا بڑا شہر ہے, اور اس نے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کو بھی اور جنوبی بلوچستان سے بھی بالکل پیشنٹس آئیں گے. تو سر ٹائپس آف کینسر, کیونکہ شوکت خانم کے بارے میں لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے بریسٹ کینسر کو تو بہت زبردست طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, شاید باقی کینسر اس طرح سے نہیں. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتا دیں, واضح کر دیں کہ ہر قسم کا کینسر جو ہے شوکت خانم ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے دونوں ہاسپٹلز جو ہیں وہ کمپریہنسو کینسر سینٹرز ہیں, تمام کینسرز وہاں ٹریٹ ہوتے ہیں جو ہمارے خیال سے ٹریٹیبل ہیں, جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. سارے پیشنٹس کو ہم لیتے ہیں. بریسٹ کینسر یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں کامنسٹ کینسر ہے خواتین میں, اور ایشیا میں امنگسٹ دا ہائیسٹ انسیڈنسز ہیں پاکستان میں بریسٹ کینسر کی. لیکن ہم فل اسپیکٹرم, آنتڑی کا کینسر, میدے کا کینسر, پھیپڑے کا, کوئی کینسر ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں ٹریٹ کرتے. اچھا, بہت سارے مریض جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے, ایک انفلو جو ہے وہ اس کا اگر آپ ہمیں کوئی میگنیٹیوڈ بتا سکیں. جی سو رفلی 175,000 نیو کینسرز ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں پاکستان میں, جن میں سے 60 to 80% ڈائی اسی سال میں, کیونکہ وہ اتنی ایڈوانس سٹیج میں پہنچتے ہیں. سو اس میں سے ایک بہت بڑی پروپورشن, تقریباً 1/4 سے زیادہ ہمارے واک ان کلینکس میں آتے ہیں, جو لاہور, پشاور اور کراچی میں بیسڈ ہیں, جہاں کوئی بھی پیشنٹ جن کو تشخیص ہوئی ہو یا شک ہو وہ آ کے اپنا معائنہ فری کروا سکتے ہیں. فری کروا سکتے ہیں. وہاں سے تقریباً ہم اس وقت 2 ہسپتالوں میں 11,000 کے قریب نئے کینسر پیشنٹس ہر سال لیتے ہیں. اینڈ اگین پاکستانی نیشن کی سپورٹ کی وجہ سے, کیونکہ آدھا سے زیادہ بجٹ زکوٰۃ اور عطیات سے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہر سال وہ کلیکشنز زیادہ ہوتی ہیں پچھلے سال سے, اور ہر سال ہم پچھلے سال سے زیادہ
फ्री पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं इनको हम इलाज नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, क्योंकि मिस मैच है, फैसिलिटीज़ इतनी तो नहीं है कि हम सारे ट्रीट कर सकें। बिटवीन 45 and 50,000 पेशेंट्स हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में आते हैं हर साल। हम 2 हॉस्पिटल्स में 11 से 12 हज़ार तकरीबन ले सकते हैं नए पेशेंट्स हर साल, क्योंकि 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स फॉलो अप पे भी होते हैं। ठीक है, जिनका पहले सालों में इलाज हो चुका होता है लेकिन 5 साल तक फॉलो अप करते हैं। सो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पेशावर में दूसरा हॉस्पिटल खोला ताकि ज़्यादा पेशेंट्स ले सकें, एंड इंशाल्लाह कराची के हॉस्पिटल की वजह से उसका जो साइज़ और फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि प्रॉबली ये नंबर डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हम इंशाल्लाह 20-22 हज़ार फिर नए पेशेंट्स लिया कर। तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स स्टाफ आपके इन दोनों अस्पतालों में लाहौर और पेशावर में कितना है? टोटल हमारा जो स्टाफ अक्रॉस द कंट्री है वो 3,500 के करीब है। लाहौर में तकरीबन 2800 स्टाफ है और पेशावर में तकरीबन 600 लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सही है। एक हमारी छोटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अभी कराची में भी है, वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 50 लोग एम्प्लॉयड हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है सर, क्योंकि अभी ये भी कहा जाता है कि पेशावर वाला जो शौकत खाना है वो उस तरह से लेवल पर ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह से कि लाहौर है, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट या ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो शायद वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को स्टिल लाहौर आना पड़ता है। इज़ दैट ट्रू? नो लॉन्गर, नो। सो जब हमने पेशावर खोला था हमने उसको फेजेस में खोला था। फर्स्ट फेज़ दिसंबर 2015 में हमने सारी डायग्नोस्टिक्स, इन पेशेंट्स ICU वगैरह और कीमोथेरेपी से शुरू किया था, क्योंकि कीमोथेरेपी साइक्लिक होती है, यानी कि आपको बार बार लगवानी पड़ती है। हाँ जी। तो हमने सोचा कि वो जो फैसिलिटी है वो फ़ौरन खोलें पेशावर में ताकि मरीज़ों का ट्रैवल टाइम और इनकन्वीनियंस कम हो। रेडिएशन जो होती है वो अक्सर 4-5 हफ्ते के लिए होती है, लेकिन एक दफ़ा होती है। सही है। तो उसके लिए आप एक दफ़ा आ सकते हैं लाहौर और फिर वापस जा सकते हैं। सो 2019 में फिर 3 साल बाद हमने रेडिएशन का भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया बिजली की शुआओं से। अच्छा। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पेशावर में खोल दी, और इस साल अप्रैल में हमने सर्जरी भी खोल ली है पेशावर। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो कहाँ पर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कहाँ पर हैं दुनिया की? अगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम कटिंग एज पे रहें हमेशा। फॉर इंस्टेंस 2008 में हम पहला हस्पताल थे पाकिस्तान में जहाँ PET CT स्कैनर इंस्टॉल हुआ था, जो कि कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल कंसिडर किया जाता है। अभी हमारे पास लाहौर में ऐसे 2 हैं, पेशावर में भी एक है। बहुत सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं कैंसर में, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स में हो या ट्रीटमेंट में हो, वो इनिशियली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उनकी यूटिलिटी अनसर्टन होती है। तो हम थोड़ी देर ज़रूर इंतज़ार करते हैं 2-3 साल के टेक्नोलॉजी सेटल हो जाए, डेटा फर्म अप हो जाए कि वाकई ये चीज़ यूज़फुल है कि नहीं, फिर हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो ये भी होती है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई हमारी जान पहचान नहीं है वहाँ पर, तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो ये जो जान पहचान वाला, और ये पाकिस्तान के हर मसले में ये होता है, हर कोई भी डोमेन हो, नादरा का शनाख्ती कार्ड से लेकर पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर कुछ भी हो, तो यहाँ पर जान पहचान वाला फैक्टर जो है वो कितना ज़्यादा अमल दखल होता है? वो ज़ीरो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में लोग आते हैं, तो अब हर जगह पेशावर में, कराची में, लाहौर में वॉक इन क्लिनिक्स हैं, वहाँ किसी की जान पहचान नहीं होती। वो सिर्फ मेरिट पे और डिज़ीज़ की स्टेज पे देखा जाता है मरीज़ को, कि वो ऐसी डिज़ीज़ हो, इस स्टेज पे हो जिसका हमारे ख्याल से हम इलाज कर सकें। हमारे पास उसके लिए दवाइयाँ हों, इक्विपमेंट हो, स्पेशलिस्ट्स हों और कैपेसिटी हो। सो सिर्फ कैपेसिटी पे बेस किया जाता है। नेवरदलेस ऑब्वियसली जिनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो तो नेचुरली आई अस्यूम खुश होते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं एक्सेप्ट करते वो बहुत एक बिटर पिल होती है उनके लिए। करने का वो क्या क्राइटेरिया होता है? कि अगर उनकी डिजीज स्टेज ज़्यादा हो, जिसमें हमें लगे कि हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलाज ज़कात से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़कात एक सीक्रेट ट्रस्ट है लोगों की। हमारा ख्याल है कि लोगों ने हमें इसलिए दी हुई है कि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट किसी को पहुंचा सकें। तो आप बेनिफिट तो सबको पहुंचा सकते हैं, जो एडवांस डिजीज़ है उसको भी कोई बेनिफिट तो होगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हमारे ख्याल से उनको होगा जो मुकम्मल इलाज हो सके, जिनका जो सेहतयाफ्ता हो सके, जो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, माएँ हों, वालिद हों, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, बजाय इसके कि हम वही पैसे खर्चें लेट स्टेज डिजीज़ में, जिसमें उस इंडिविजुअल को शायद थोड़ा फ़ायदा तो हो, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप क्योर करके किसी को कर ठीक है। एक और टेस्ट होता है जिसके बारे में कहते हैं बाहर की दुनिया में होता है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में करते हैं लोग, कहते हैं आप अपने कैंसर के बारे में पहले से जान सकते हैं कि आपको आने वाले सालों में या कभी एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कभी डेवलप होगा या नहीं होगा। क्या वो टेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है और कितना महंगा है, सस्ता है? जिस तरह अल्जाइमर की जीन वो चेक करते हैं कि क्या आप में, आपके अब्बू को अल्जाइमर था तो क्या आप में है। सो आई थिंक जो ये इसको ब्रॉडली जो कहते हैं वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप ऐसा टेस्ट करें किसी में जिनको अभी अलामात नहीं हुए, लेकिन जिससे पता चले कि उनको वो रिस्क है।
सही है। तो स्क्रीनिंग फॉर कैंसर बहुत किस्मों की होती है, और क्योंकि हम अब ब्रेस्ट कैंसर की भी बात कर रहे हैं, पिंकटोबर भी है, तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल उसमें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत बहुत कम लोगों में होती है। जो सिंपलेस्ट वे है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का वो तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। 18 से 40 साल की उम्र तक हर ख़वातीन, हर औरत को ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा महीने में अपनी छाती का मुआयना करें। 40 साल की उम्र के बाद 60 साल तक हर साल अपना मैमोग्राम करवाएं, जो एक ख़ास किस्म का एक्सरे है। तो ये स्क्रीनिंग है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मुख्तलिफ और बड़ी आंत के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो सकती है टेस्टों से, ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट से, या कोलोनोस्कोपी करने से, बड़ी आंत का अंदर से मुआयना करने से। मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, मे बी 10%, जिनमें एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अच्छा। फैमिलीज़ में रन करता है, वालदा को होता है, बेटी को भी हो सकता है, खलाओं को हो सकता है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। वो पाकिस्तान में शौकत खानम ही करता है। अच्छा, वो ब्रैका जीन उसको कहते हैं, BRCA 1 और 2। ठीक है, और इज दैट फ्री या उसके चार्जेस जो हमारे फ्री पेशेंट्स, हाँ, so हमारे 75% ऑफ आवर पेशेंट्स लाहौर में भी, पेशावर में भी आर ट्रीटेड कम्प्लीटली फ्री। उनके लिए फिर हर चीज़ फ्री है। अच्छा, पेट स्कैन हो, कीमोथेरेपी महंगी से महंगी हो, टेस्ट हो कोई, बट 25% रफली लोग पे करते हैं। तो और इस टेस्ट का नाम क्या आपने बताया? ब्रैका, BRCA 1 और 2। बिल्कुल सही। अच्छा, जो लोग वो जेनेटिक वाला टेस्ट ना कर सकें वो फिर इस प्लेज की तरफ तो आएंगे। ये प्लेज क्या है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या और मज़ीद क्या क्या कर रहे हैं आगाही के लिए। ये प्लेज एग्जैक्टली यही है कि हम चाहते हैं कि हर औरत पाकिस्तान में अपने आप से प्लेज करे कि वो 5 मिनट हर महीने अपने लिए निकाले, अपने बच्चों को छोड़ के, घर वालों की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के, कि 5 मिनट हर महीने ले अपने लिए, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने के लिए अपने हाथ से। दैट इज़ द सिंगल मोस्ट यूज़फुल थिंग 18 साल से लेके 40 साल तक, ताकि अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो आप उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उस उम्र में अक्सर गिल्टी कैंसर नहीं होगी, लेकिन हाथ लगाने से पता नहीं चल सकता। सो कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको फ़ौरन चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मुमकिन है, 100% इलाज हो सकता है। बेसिकली वही डिजीज़ लेट हो जाए, स्टेज 3 या 4 में चली जाए, तो 20% सर्वाइवल पर रह जाता है। अच्छा, तो बस ये कि आप अपना मुआयना करते रहें, और जहां आपको कहीं कोई इस तरह की कोई गिल्टी या कोई चेंज फौरन उसको चेक करवाएं, शर्माएं ना, डरे ना, इंतज़ार ना करें कि चलो 2-3 महीने देख लें, क्योंकि वो फैल सकती है। और इस हवाले से इस महीने में आप लोगों की कोई ख़ास एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जी, हमारा ख़वातीन जा भी सकें। और हम 25 साल से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारा इसमें मीडिया का भी रोल है। आप लोगों ने हमारी मदद की। 25 साल पहले आप टीवी पे आके बात नहीं कर सकते थे इस मौजू पे, टैबू था। अब हर चैनल पे हर वक्त ये बात हो रही होती, विच इज़ फैंटास्टिक। और इसकी वजह से हमने अर्ली स्टेजेस भी देखी हैं लोगों को आते हुए, और क्योर रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं अवेयरनेस करने के लिए, लाइव सेशंस करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह, ताकि अवेयरनेस इसके लिए बढ़े। हमारा रिसर्च का बहुत फोकस है ब्रेस्ट कैंसर पे, क्योंकि दिस इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर जो हमारे यहाँ देखा जाता है। तो हमारे बेसिक साइंस रिसर्च भी हम कर रहे हैं, और हमने नोवेल जेनेटिक म्यूटेशंस इसमें आइडेंटिफाई भी की हैं। इसके अलावा न्यूमरस और इवेंट्स थ्रू आउट दिस टाइम, बट एक्चुअली पूरा साल हम करते रहते हैं। एंड हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू? शौकत खानम कराची का जो बन रहा है, उसके लिए भी किस तरीके से एहतियात दे सकते हैं, या ज़कात या डोनेशंस? सो उसका न्यूमरस मोड्स हैं। एक है 100 रुपीज़ दे के आप डोनेट अ ब्रिक कर सकते हैं। 100 रुपये आप रोज़ दें तो एक ईंट लगती जाएगी हॉस्पिटल में। 5 लाख रुपए आप दें तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। एक फाउंडिंग डोनर्स मॉन्यूमेंट है, उस पर आपका या आपके वालिदैन का, किसी का आप नाम लिखवा सकते हैं। लाहौर में और पेशावर में ऑलरेडी है। 20 लाख से शुरू करके तो आप कोई कमरा या एरिया डेडिकेट करवा सकते हैं, अगेन अपने किसी लव्ड वन के नाम पे। हमारी वेबसाइट www.shaukathanam.org.pk पे पूरा मेन्यू है इक्विपमेंट का भी, और ये जो एरियाज़ डेडिकेट करवाने के लिए, कि आप देख सकें जितनी आप देना चाहें उसके मुताबिक। अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे घर पे आके तो आपकी डोनेशन कलेक्ट करेंगे और रिसीट भी देंगे। 0800 11 555 इस पर कॉल करें और वो खुद आकर ले लेंगे। ये एंड वन थिंग वी ऑलवेज मेंशन एवरीवेयर इज़ 770 पे अगर आप SMS भेजें ब्लैंक या आईफोन पे स्पेस डाल के, तो 20 रुपए शौकत खानम को मिलते हैं। ये तो हम अभी फौरन ही करते हैं ना, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो उठाए और ये काम तो कर दे। 770 पर मैसेज कर दीजिए। ये कंट्रीब्यूशन छोटी सी हो जाएगी। और वो जो आपने बात की थी ना कि 25 साल पहले इस पर बात नहीं हो सकती थी, अब इस पर बात हो रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को ये पता चले कि उसकी माँ या उसकी बहन या बीवी बेटी किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है,
اور وہ ایسی سٹیج پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ خدا نخواستہ لا علاج ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے اس سٹیج پر پہنچا کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی، تو وہ کتنا بڑا ٹراما ہوگا اس شخص کے لیے کہ صرف بات نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ایک ایسی بیماری جس کا مکمل علاج ممکن ہے وہ لا علاج ہو جائے، صرف اس لیے کہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ مطلب ہمیں تو ہمارا ریلیجن جو ہے اس نے یہ سکھایا ہے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، شریعت کی جو بھی بات ہے، اور ظاہر ہے علاج سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، دین ہمارا جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی مائل کرتا ہے اور علاج کے لیے بھی جو ہے وہ مائل کرتا ہے بیماریوں کے، اور قرآن میں بھی یہ آتا ہے کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ تو پھر بھی ہم اگر بات نہ کریں تو یہ تو اپنے آپ سے اور پورے معاشرے کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ جس طریقے سے کراچی کا یہ ہاسپٹل بن رہا ہے جلد یہ بنے، اور بہت سارے شہروں میں یہ ہسپتال بنے، اور مریضوں کی تعداد جتنی کم ہو سکتی ہے وہ کم ہو۔